Hello students, I am Vijay. How are you? Today we will start the new chapter, that is 7th chapter, Physiology and Injury in Sports. This is very important chapter about the activity and about the components, and that is related to physical fitness, to physiology and injury. These two topics involved in this chapter. So first, let us discuss the physiological factors determining the components of physical fitness. First of all, we will discuss the components. That component determine the physical fitness. How? There are various physiological factors that determine the components of physical fitness, such as strength, speed, endurance, and flexibility. These physiological factors determine physical fitness in different manner. Let's discuss. And in same manner, first we will understand the physiology. What is the physiology? Sports physiology is the study of long and short term effects of training and body condition of athlete. Sports physiology in this definition of physiology, it's not only physiology, it is the sports physiology actually. Sports physiology. In the sports physiology is the study of the long and short terms effects of training, body condition of athlete. जो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी है, सबसे पहले उसकी चीज़ देखी गई है, उसकी स्टडी के बारे में बात किया गया है, लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स जो उसके इफेक्ट होते हैं, किसके, दैट इज द ट्रेनिंग इफेक्ट एंड बॉडी कंडीशन, जो ट्रेनिंग के इफेक्ट हैं एथलीट की बॉडी के ऊपर, एज वेल एज द बॉडी कंडीशन, उसकी बॉडी कंडीशन क्या है, उसकी स्टडी जो है, दैट इज द स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, ये उसकी बॉडी की स्टडी है. Now let's discuss the factors. Those factors determine the components of these many factors, that is the effect, the components. One is the
strength, another component that is speed, third that is endurance, and fourth component that is flexibility. These four components very important to understand the physiological factors determine all these four factors. Now let's first of all we will discuss about the strength. In strength, physiological factor determines strength. First, this is very important to understand the strength and the part of the strength. First point of the this is topic that is influence the strength, size of the muscles. Size of the muscle, this is very important point, and in this topic we will be discuss about the muscle size. The strength of the muscles largely depend upon the size of muscle. Means if the muscle is broad, so definitely it's depend on size. जो broad है, जो strengthen है, तो वो किसकी वजह से, साइज की वजह से. द साइज ऑफ द मसल कैन बी इंक्रीज एंड देयर बाय स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव्ड. सो द स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ मसल. जो स्ट्रेंथ है वो किसको डिटरमाइन करती है, साइज ऑफ द मसल. जो मसल का साइज है, जैसा साइज होगा उसके अकॉर्डिंग जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ होगी. इट्स सिंपल. नाउ नेक्स्ट, बॉडी वेट. Body weight, this is also very important because it's very easy to understand about the muscles, how it's strong. There is a very positive or coordinative between the body weight and strength among the muscle, just like weightlifter. The heavier weightlifter having heavy weight, so body weight also determine the strength of an individual athlete. Whatever the body weight, it's depend on the muscles, and whatever the performance या whatever the weight carried by that particular athlete, it's depend on the muscle size. तो मसल साइज कैसा होगा और मसल साइज कैसा होगा, इट्स डिपेंड ऑन द बॉडी वेट. जैसे बॉडी वेट गेनिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका मसल का साइज इंक्रीज होगा
और जो बॉडी का वेट है वो ऑटोमेटिकली उतना इंक्रीज होगा, और बॉडी वेट ज़्यादा होगा देन यू हैव टू कैरी मैक्सिमम वेट. ऑब्वियसली ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट द हैवी वेट लाइक वेट लिफ्टर या you know that is the carry, you know, just like gym weight also whenever people going for just making the body. तो जब वो बॉडी डेवलप कर रहे हैं उस टाइम पे तो ज़्यादा वेट कब कैरी करेंगे, जब बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तभी बॉडी, आप अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग ही तो वेट कैरी कर सकते हो. ऐसा तो नहीं है कि आपका जो वेट है वो अंडर वेट है एंड यू आर गोइंग टू कैरी हैवी वेट. इज इट इम्पॉसिबल? एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज द muscle composition. Muscles composition. Muscle composition. This is also very important to understand. Each muscles consist of basically two type of muscles. One is the fast twitch fiber. First is the fast twitch fiber. Two types of muscle fibers. It's called muscle composition also. One is the fast twitch fibers, that is white fiber. जो fast twitch fiber है वो कैसे होते हैं, वो white होते हैं कलर में. Another is the slow twitch fiber, that is red, color in red. Now see, each muscle fiber have different kind of quality or variety. The fast twitch fibers are capable for faster, yani for fast activities, and another is the slow twitch fiber. The slow twitch fiber are cannot be capable for fast activities, but in slow twitch fiber they have the capacity for long duration activity, slow and long. So these fibers, the slow and long duration, they have the capacity for long distance type of activity, and in fast twitch fiber they have speed up activities, but obviously we know if they have speed activity, that is the slow fast activity, but for a short time. जो आप जब भी आप कोई भी फास्ट एक्टिविटी करते हो तो वो फास्ट एक्टिविटी हमारी कैसी होती हैं, बहुत कम टाइम के लिए होती हैं. फॉर एग्जांपल लाइक 100 मीटर, 200, 400 मीटर events. These are the events that is related to short event. But in another way, if we can go for the long duration activity, like road race,
road races. How road races like cross country, marathon, these are the big example of slow twitch fiber, because in this type of long distance type of activity we have need the more endurance, यानी हमें लंबा चलने के लिए, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, बट हमें यहाँ स्पीड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंड्योरेंस होगा देन वी विल बी डिस्कस लाइक जैसे क्रॉस कंट्रीज होती हैं आपकी 5000 मीटर है, 10,000 मीटर है, तो हाउ यू विल बी कंप्लीट, तो यू मस्ट बी मेंटेन योर एंड्योरेंस, बट हियर इन शॉर्ट fast twitch fiber we have to need the speed, we have required the speed to completing this type of event, and with the help of the fast twitch fiber we can go for the speed up work, but in this activity we don't have any kind of stamina, यानी हमें लंबा नहीं चलना है, यहाँ पे शॉर्ट करना है, कंप्लीट हो जानी है एक्टिविटी। तो ये हमारे दो तरह के फाइबर होते हैं। And one more thing, the fast twitch fiber, slow twitch fiber have different kind of activity. Fast twitch, they have the fast work. Slow twitch fiber automatically slow and long duration activities, and these muscles produce the force according to as per the fiber, and in this activity, if we can about the whatever the activity according to fiber, the muscles which have more percentage of fast twitch fiber to very helpful and produce more strength in fast twitch or fast activity. The percentage of fast twitch fiber and slow twitch fiber, if we are talking about the slow twitch fiber, that is the generally determine the endurance, means in slow twitch fiber cannot be changed through ट्रेनिंग। एक और चीज, वी कैन नॉट चेंज अवर स्लो ट्विच फाइबर, कि अगर कोई ये सोचे कि उसके स्लो ट्विच फाइबर है, यानी वो जो उसकी बॉडी है वो स्लो एंड लॉन्ग डिस्टेंस है, एंड बाय हेल्प ऑफ ट्रेनिंग ही और शी कैन चेंज द फाइबर, यानी कोई स्लो डिस्टेंस का एथलीट है, वो अपने आप को चाहे मैं 100-200 इवेंट करूं, इज इट इम्पॉसिबल, नथिंग टू चेंज इन स्लो ट्विच फाइबर, and it's very important to understand the activity. Both of activity is very important for from both side. So these fiber determine the strength of a person, because we have need the strength in both situations, but यहाँ हमें स्ट्रेंथ किस मैनर में चाहिए, स्पीड के साथ हमें स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, मिनिमम टाइम, दैट इज द टाइम स्पीड एक्टिविटी, एंड हियर वी हैव नीड द एंड्योरेंस। टाइम तो यहाँ भी है ऑब्वियसली, जो अगर आप 5000 मीटर आप कुछ करते हैं, अगर सपोज कोई इवेंट है आपका, तो यू हैव द टाइम टास्क, बट विद द हेल्प ऑफ एंड्योरेंस यू विल बी कंप्लीट दिस एक्टिविटी, यानी आपको स्लो और लॉन्ग डिस्टेंस वर्क करना पड़ेगा। एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा है, ऑक्सीजन इनटेक की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट of this topic, intensity of nerve impulse. Intensity of the nerve impulse in muscle is composed of number of motor units. The total force of muscle depend on the number of contracting motor units. Whenever a strong nerve impulse from central nervous system exceeds more number of motor units, the muscle will be contract more strongly, or it can be said that the muscle will be produce more force or strength, यानी
जो इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करी गई है यहाँ, ये डिपेंड करता है जो मसल है उसके ऊपर कि नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स की कि कितनी फोर्स प्रोड्यूस करती है मसल, और स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ स्ट्रेंथ की बात करी गई है, नर्व इम्पल्स की बात करी गई है। सपोज एक वेट लिफ्टर है और उसको 200 kg वेट लिफ्ट करना है। ही इज कंप्लीट प्रिपेयर फ्रॉम द फिजिकल साइड, जो उसकी बॉडी है उधर से वो बिल्कुल तैयार है उस वेट को कैरी करने के लिए, बट ही हैव नीड द मेंटल बैलेंस ऑल्सो टू कैरी दैट पार्टिकुलर वेट। अब उसके नर्व इम्पल्स सबसे ज्यादा उसका जो जिसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी दिमाग का जो मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन है, वी हैव टू मेंटेन, और तभी उस पार्टिकुलर मूवमेंट में जो मसल्स जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगी और स्ट्रेंथ आएगी, वो कहाँ से आएगी? विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स, और जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है सब चीज को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। दिस इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ। दिस इज अवर वन और फर्स्ट टॉपिक, द स्ट्रेंथ. Students, our second topic of the physiological factor determine speed. Physiological factors determine speed. कि physiological factors जो है वो कैसे प्रभावित करते हैं स्पीड को. Then it is the first topic, mobility of the nervous system. This is the first topic, and in this topic our muscles contract and relax at the maximum possibility in speed as seen in sprint events. जो सबसे पहली बेसिक चीज़ बताई है कि जो मसल्स हैं उनकी पहली चीज़ क्या है, जो स्प्रिंटर होते हैं या स्प्रिंट इवेंट्स होते हैं उसमें पहले में जो मैक्सिमम मसल्स हैं उनको रिलैक्स रखना है, जो उनका चाहे जब वो इवेंट स्टार्ट होता है उसके पहले या इवेंट कंप्लीट हो जाता है, दोनों में. तो मोबिलिटी सबसे पहली इसमें मोबिलिटी की बात करेंगे. जैसे ही मसल्स का मोबिलाइजेशन होगा, मोबिलिटी होगी, उतनी ही स्पीड इंक्रीज होगी और उतने ही इंजरी के चांस कम होंगे, यानी चोट लगने के चांस. और दिस रैपिड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज मेड पॉसिबल बाय मेन थिंग इज that is the rapid acceleration and inhibition of the concern motor center. तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ बताई है, यानी आप जो उसका अपना कॉन्ट्रैक्शन है या मसल का रिलैक्सेशन है वो कितनी पॉसिबल कब हो सकती है, जो आपकी रैपिड एक्सीलरेशन है जिसमें एक्सीलरेशन और इनहेलेशन ऑफ जो पर्टिकुलर कंसर्न मोटर सेंटर है वहाँ से पॉसिबल है. और ये कहाँ पॉसिबल है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो उसको कंट्रोल कर रहा है, किसको, जो कमांड दे रहा है बेसिकली मसल्स को. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी है, इट्स डिपेंड द नर्वस सिस्टम कैन मेंटेन द रैपिड एक्टिविटी, जो आपकी एक्सेलरेशन और इनहिबिशन है, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है जो नर्वस सिस्टम कर रहा है. और ओनली फ्यू सेकेंड, जो मिनिमम कम से कम विच द परफॉर्म द एक्टिविटी, उसकी जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की या स्पीड की जो मूवमेंट है, द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी ट्रेंड बाय ओनली द लिमिटेड एक्सटेंड, मिनिमम टाइम में, लिमिटेड टाइम में उसको एक्यूरेट करना. मिनिमम टाइम इन द सेंस, सपोज एथलीट गोइंग फॉर द 100 मीटर, तो ही हैव वेरी लिमिटेड टाइम, यानी उसके पास जो आपका 9 सेकंड का 10 सेकंड का जो टाइम है उसी के अंदर उसको उस मोबिलिटी का यूटिलाइज करना पड़ेगा और जो नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करना पड़ेगा टू कंप्लीटिंग द टास्क इन मिनिमम टाइम. दिस इज द मेन थिंग. एंड स्पीड इज डिटरमाइंड ग्रेट एक्सटेंड बाय द जेनेटिक फैक्टर. अब यह जेनेटिक फैक्टर क्यों बोला गया है इसमें,
जेनेटिक फैक्टर जो यहाँ आया है, सबसे पहली चीज अभी हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी फास्ट ट्विच फाइबर की, जो फाइबर्स की बात करी, यानी दैट इज मसल कंपोजिशन। मसल कंपोजिशन क्या है? जेनेटिक फैक्टर होता है मसल कंपोजिशन, और इसमें ये डिपेंड करता है, हमारी जीन्स पे डिपेंड करता है, दैट इज ट्रांसफर टू आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जीन पे डिपेंड करती है मसल फाइबर के। जो पर्टिकुलर जो एथलीट है उसकी जीन कैसी है, उनके जो जेनेटिक फैक्टर है कहीं ना कहीं वो कैसे हैं, स्लो ट्विच फाइबर हैं या फास्ट ट्विच फाइबर हैं, उसी बेसिस पे ये चीज पॉसिबल है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस के इनको ट्रेनिंग के थ्रू स्लो ट्विच फाइबर को फास्ट ट्विच में चेंज नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी बाय परफॉर्मिंग रैपिड एक्टिविटी वी कैन बी इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज द रिएक्शन ऑल्सो। हम इसको कहीं ना कहीं रिएक्शन के साथ भी ले सकते हैं। whenever we have to listen the command like 100 मीटर का जो एथलीट है वो 100 मीटर के इवेंट के लिए तैयार है, यहाँ उसको कमांड मिलेगी, ही जस्ट कमिंग, उसको कमांड मिली एथलीट ऑन योर मार्क, वो यहाँ आ गए, उसके बाद कमांड मिलती है सेट, तो दे हैव टू सेट द बॉडी। उसके बाद उनको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना होता है, दैट इज द कमांड फॉर गो, स्टार्ट करने के लिए, वॉट एवर द गन, क्लैपर, विसल। तो यहाँ से जब एथलीट किस चीज पे बेसिकली फोकस कर रहा है, सिर्फ कमांड के ऊपर, और कमांड यानी जैसे ही कमांड मिलती है वो उस पर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, मीन्स ही विल बी स्टार्ट द रनिंग। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना क्विक स्टार्ट लेता है, जिसको आप बोलोगे करेक्ट स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट, दैट इज द फाउल। अगर अर्ली स्टार्ट ले लिया तो ये फाउल हो सकता है, तो इट्स कॉल्ड क्विक स्टार्ट, क्विक अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटेड मूवमेंट, तो इट्स डिपेंड ऑन द मोबिलिटी। This is the main factor of this speed. And another point, that is the muscle composition. Again we come back on the muscle composition, that is the fast twitch fiber or slow twitch fiber. This is very important. Muscle with the great percentage of fast twitch fiber to help to completing the speed, minimum speed or maximum speed and minimum time. This is the main phenomena of fast twitch fiber. And muscles with the low percentage of fast twitch fiber, the muscle composition is great than determined, and they cannot change the fiber with the help of training. वापस वही चीज कि उसको फाइबर के थ्रू ट्रेनिंग के थ्रू जो आपके स्लो ट्विच फाइबर है उनको चेंज नहीं किया जा सकता। And different muscles of the body have different percentage of fast twitch fiber. So fast twitch fibers of the body have different speed performance, अलग अलग speed performance है। by performing with the help of rapid activity या by performing of training we can increase it, इसको हम increase कर सकते हैं, improvement कर सकते हैं इसमें, बट वी कैन नॉट चेंज, इसको पूरी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। एंड फास्ट ट्विच फाइबर प्ले वेरी वाइटल रोल टू इम्प्रूविंग द स्पीड, टू गेनिंग द स्पीड। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लोरेसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोरेसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोर, ऑलरेडी वी नो अबाउट द एक्सप्लोर, कोई भी धमाकेदार किसी स्ट्रेंथ का आना, एंड लाइक फॉर एवरी क्विक मूवमेंट, explosive movement in, it's completely depend on, like for example a quick punch of boxing cannot be delivered if the boxer lack explosive strength। यहाँ ये बोला गया है एक एग्जांपल में, एक बॉक्सर एक क्विक पंच रिलीज करता है, यानी अपोनेंट को एक पंच मारता है, और ये जो पंच है इसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की कमी है, यानी जो धमाकेदार पंच होना चाहिए उसकी कमी है, तो हाउ ही कैन मेक द पॉइंट, नहीं बना सकता। यानी ये जो पंच मारा एक बॉक्सर ने, वो जो पंच है वो कैसा है, वो बहुत इफेक्टिव पंच नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ एक्सप्लोरेसिव स्ट्रेंथ की कमी थी, धमाकेदार स्ट्रेंथ की, जो जोर से पड़ना चाहिए था पंच, उसकी कमी रही।
So explosive strength play very vital role in like boxing, and we can add some more games like shot put releasing, discus. These are very important to play very vital role to improving the explosive strength, and these importance in these parts are very important to play. Again, that is the muscle composition also play very vital role in this thing. Like if we can discuss about the any kind of and one more thing, these factors yani muscle composition, the factor can be improved through training, which they truly improve the speed for a limited extent. And definitely if we can discuss about the explosive strength, speed play very vital role. We have need the strength, but with the strength, if we cannot improve the speed, then explosive strength cannot play the actual role. So we must be increase the speed to perform the best releasing whatever the short put, discus, and a boxing punch also. Now next point, flexibility. Flexibility also is very essential to performing any kind of speed, because if athlete have a lack of flexibility, then he cannot increase the speed. It's a very simple thing. And good flexibility or allow to maximum range of movement. This is also a very truth. जो एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा रेंज है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो वो मैक्सिमम जो मूवमेंट है उसकी रेंज को इंक्रीज कर देता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट internal resistance, flexibility also unable to complete until any kind of task of explosive strength. तो जो flexibility है, that is play very vital role to increasing the speed, to increasing the range of movement. This is very important. And last point, biochemicals, receiver and metabolic power. This is the last topic, and this is very important topic for performing maximum speed. Your performance in speed to increasing the muscles require more amount of energy. This is main thing. And very high rate of speed, or we can say ATP, that is the phosphate adenosine triphosphate. It's called in short ATP. It's control the we can say store CP in muscle should be enough, जो हमारी एनर्जी बॉक्स का काम कर रहा है कहीं ना कहीं ये. और जो सबसे बेसिक चीज़ क्या है इसके अंदर, जो मसल कंट्रैक्शन की बात करी गई है. दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि इसमें एक और जो बताया गया, मसल कंट्रैक्शन ड्यू टू इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई बिकम स्लो आफ्टर ए शॉर्ट टाइम. जो ऑटोमेटिकली जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो ड्यू टू ATP, ये जो सफिशिएंट एनर्जी होती है उसकी सप्लाई जो है वो थोड़ी शॉर्ट टाइम यानी कुछ टाइम के बाद कम हो जाती है, स्लो हो जाती है. द एनर्जी सप्लाई ऑल्सो डिपेंड ऑन दी सर्टेन एंजाइम विच इंक्रीज द मेटाबॉलिक पावर. जो मेटाबॉलिज्म है ऑलरेडी ये सबसे बेस्ट रोल प्ले करता है, जो खाना है उसकी प्रोसेस में, नरिश करने हैं, पचाने में. और जो मेटाबॉलिक पावर है, जो मेटाबॉलिज्म है, जितना एक्टिव होगा खाने का जो प्रोसेस है वो उतनी ही जल्दी कंप्लीट होगा, और जितने जल्दी कंप्लीट होगा बॉडी को जो एनर्जी है वो जल्दी मिलेगी एनर्जी. और अगर खाना ही आपका नरिश नहीं होता है या डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर मैनर में, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक है, कमज़ोर है. और इस सिचुएशन में बॉडी वेट गेनिंग कर लेती है, और बॉडी जो है उसको जो प्रॉपर एनर्जी सप्लाई होनी होती है वो नहीं मिलती. the amount of ATP or CP and rate of energy supply can be increased or enhanced by training. We have to perform the training, different kind of exercise, that is the specific training related to any kind of activity.
It can be said that biomechanical receiver and metabolic power determine the speed. स्पीड जो है वो तभी पॉसिबल है, इंक्रीज हो जाना, जब ये दोनों चीज़ें मिलके एक साथ काम करें, और जो ट्रेनिंग है वो इसके बार को इनहेंस कर देती है, इंक्रीज कर देती है. किसमें? टू हेल्पिंग दी इंक्रीज दी स्पीड. नेक्स्ट पॉइंट, this is the third point. In this third point we will discuss physiological factor determine endurance, that is the long distance, and endurance always represent to long distance या long duration type of activity. The first point of endurance, the aerobic capacity. Aerobic capacity means constant activity, to perform any kind of activity in a continuous manner for a long term. Energy required by the muscles, which can be supplied by the presence of oxygen, because during the any kind of aerobic capacity, that is the long distance running, like running, jogging, and it's a big example of dance also. So this is the aerobic capacity, because duration of this activity athlete required the maximum need of oxygen. This is the main thing. And supply of oxygen to the working muscles, it's called the capacity for for performing the these type of long distance. So body need the energy, and energy is the oxygen. This is the main thing. And lot of points, a lot of factors, the aerobic capacity depend on the following factors. These are the factors. Oxygen intake, this is the first factor. Oxygen intake, it is the amount of oxygen which can be taken by the lungs from the atmosphere. यानी वो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इंटेक की बात करिए, जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेना? जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है वहाँ से. इफ़ द अमाउंट इज द मोर देन बेटर, तो अचीविंग वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द VO2. एंड द ऑक्सीजन इनटेक डिपेंड ऑन द वाइटल कैपेसिटी, विच फर्दर डिपेंड ऑन द लंग साइज. जो आपकी वाइटल कैपेसिटी है ऑक्सीजन इनटेक करने की, वो किस पर डिपेंड करती है? फर्स्ट द लंग साइज. Main thing is that. Main thing is that lung size. सबसे पहला पॉइंट जो आएगा आपका. दूसरी कि लंग्स का जो साइज है वो बेसिकली कैसा है. इसके बाद में आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ. एंड द नेक्स्ट, that is the influence active alveoli. So these are the points. And strength of the respiratory system, main thing is that. And after that size of chest also the issue, because now we are discussing the ऑक्सीजन इंटेक. ऑक्सीजन इंटेक तो कर लें, बट इट्स डिपेंड ऑन दी चेस्ट साइज. जो चेस्ट का साइज है वो कैसा है, लंग्स की कैपेसिटी क्या है, लंग्स का साइज क्या है, और जो एक्टिव एल्वुलाइज है या आपकी रेस्पिरेटरी है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है. तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन इंटेक इज नॉट ओनली लिमिटेड factor for endurance performance in whatever the healthy sports person, but this is the main factor of aerobic capacity. Another point, that is the oxygen transport. This is also very important. Oxygen transport, the amount of oxygen taken into the blood from the lungs has to be ट्रांसपोर्टेड टू दी वर्किंग मसल्स. यानी जो ऑक्सीजन अमाउंट लिया गया है वो ब्लड के थ्रू लंग्स से कहाँ सप्लाई किया जा रहा है? वर्किंग मसल्स में. जो मसल्स वर्किंग है, द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच द ब्लड हैज
ऑब्जर्व, जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में ऑब्जर्व करी गई है फ्रॉम दी लंग्स, जो लंग्स से ऑक्सीजन आप ब्लड में ऑब्जर्व हुई है वो वर्किंग मसल्स तक पहुंचेगी सप्लाई, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन का एक बहुत ग्रेट पार्ट है। एंड द एबिलिटी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी दी क्विकली टू दी वर्किंग मसल्स, यानी योर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो प्ले वेरी वाइटल रोल टू कैरी दिस ऑक्सीजन एंड टू सप्लाई टू दी वर्किंग मसल्स, यानी जो आपके ऑक्सीजन है जो ब्लड में ऑब्जर्व करी गई है उसको ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से वर्किंग मसल्स तक पहुंचाना, इट्स कॉल्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द ऑक्सीजन अपटेक। See, in oxygen uptake, the amount of oxygen which can be observed and consumed by the working muscle, यानी जो ऑक्सीजन है, जो भी अमाउंट है ऑक्सीजन का, उसको ऑब्जर्व करना और कंज्यूम करना किसके थ्रू, वर्किंग मसल, जो वर्किंग मसल तक पहुंचा था। एंड ब्लड, इट्स कॉल्ड ब्लड ऑक्सीजन अपटेक, इसको जो बोलेंगे ब्लड में जो ऑक्सीजन अपटेक हुई है, तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व एंड कंज्यूम्ड by the working muscles from the blood is called oxygen uptake. Now next point, सबसे जो बेसिक चीज आई है यहाँ आई है आपकी एनर्जी रिजर्व्स। जो कैपेसिटी है सबसे बेसिक चीज एरोबिक कैपेसिटी, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल ऑफ द मसल्स। जो फ्यूल है, व्हाट इज द फ्यूल? फ्यूल इज द एनर्जी, एक्चुअली फ्यूल इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड इट्स एनर्जी ऑफ मसल्स फ्रॉम विच एनर्जी फ्रॉम द एक्टिविटी इज ड्राइव्ड। जिस एनर्जी की हेल्प से जो आपकी कैपेसिटी है जो भी बॉडी की फ्यूल से, यानी उसकी हेल्प से जो एक्टिविटी हैं उनको प्ले करना। द aerobic capacity depend upon the muscles glycogen and sugar level in the body। वैसे भी जब भी हमने कभी पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड एज वेल एज दी शुगर, जो शुगर है, जो ब्लड में शुगर है वो क्या करती है, दैट इज ऑल्सो ए ग्रेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। ये दोनों, तो जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ जो मसल्स में ग्लूकोजन और शुगर लेवल है ब्लड के अंदर, it will be provide the great energy to the working muscles. Now let's discuss the next topic. Next point, lactic acid tolerance. This is also a very important point to play the increasing the endurance. The ability of tolerance of higher concentration of lactic acid is a very significant or important factor in determine anaerobic capacity. The lactic acid tolerance is important for activities that at least above 40 सेकेंड और more than, यानी जो 40 सेकेंड से ज़्यादा किए हैं और उससे ज़्यादा किए हैं, उससे अबव, यानी इससे कम की बात नहीं हो रही है, 40 सेकेंड से ज़्यादा और अबव। बेसिकली द लैक्टिक एसिड टॉलरेंस या लैक्टिक एसिड कैपेसिटी कैन बी इम्प्रूव थ्रू द ट्रेनिंग। जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस है इसको थ्रू हेल्प ऑफ ट्रेनिंग वी कैन इम्प्रूव, इंक्रीज कर सकते हैं, एंड इट्स प्ले वेरी वाइटल रोल और इम्पोर्टेंट रोल टू इम्प्रूविंग और इंक्रीजिंग द इंडोरेंस परफॉर्मेंस। जो इंडोरेंस परफॉर्मेंस है, कैसे, slow and long distance activities, it's improving, because if lactic acid cannot release from the muscles, then endurance, yeah, we can say we cannot perform the long duration activities. This is very important to releasing the lactic acid from the muscles, and after releasing the lactic acid, athlete can perform maximum strength, maximum work for a long duration and effective activity. So it's a play very vital role, very important role. And how it can be released from the muscles?
for just like if athlete start in beginning like warming up. So this is the beginning activity, warming up before performing any kind of activity, training. If we are going for training, तो ट्रेनिंग के पहले भी हम वार्म अप करते हैं. इफ वी आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टू वांट टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो दिस इज मैंडेटरी कि वी गो फॉर द वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. तो जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं 15 से 20 मिनट, ये जो एपिसोड है 20 से 25 मिनट, तो इसमें क्या होगी, जो हमारी मसल्स हैं, यानी हमने स्लो वर्कआउट किया और 20 से 25 मिनट तक किया, तो हमारी जो मसल्स हैं वो लैक्टिक एसिड रिलीज कर देती है और उसके बाद पेन और फटीक फील नहीं होती, यानी थकान नहीं होती बॉडी को. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, मूवमेंट इकोनॉमी. मूवमेंट इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट रोल फॉर द various games and sports, because you know economical movement are significant for endurance performance. Like a runner, it's very important, the running at the given pace, whatever the energy expenditure, it must be calculated or counted with the movement. Suppose athlete going for like 10,000 मीटर, अब वो 10,000 मीटर के लिए अगर वो जाता है तो सबसे बेसिक चीज क्या है, ही मस्ट बी अंडरस्टैंड कि उसको ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा. दिस इज द मोमेंट इकोनॉमी. मोमेंट है उसकी पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है, उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या उसकी बॉडी के अंदर इंड्योरेंस है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट द इंड्योरेंस, विदाउट द कैपेसिटी और एनर्जी, ही कैन नॉट कंप्लीटिंग द रेस. तो दिस इज द इकोनॉमी. अब इकोनॉमी है ये उसकी अपनी पर्टिकुलर मूवमेंट्स की जो काउंटेड की हुई हैं, और ए गुड टेक्निक इंक्रीजिंग द endurance as well as to help to achieving the results. And you know endurance sports can be save the energy also, just like it's a good example of swimmer. If they can use the correct energy and utilize the correct movement of action, then they can be increased 20 or 30% energy. Same like athlete, athlete, if they can use the correct movement, then he can use the correct movement, just like you know center of gravity less than height, तो unnecessary movements reduce automatically. यानी ये डिपेंड करता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि उसको अपनी अपर बॉडी को कितना बेंड करना है या कितना स्ट्रेट दौड़ना है, हैंड मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए. अगर इन सब चीज को देख के एथलीट चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो अननेसेसरी की उसके वो है, पेन है, स्ट्रेस है, और जो बॉडी अनईजी बॉडी है वो उसकी जो एनर्जी को वेस्ट कर रही है वो उससे रिकवर कर सकता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, that is the muscle composition. Again we come back on the fast twitch and slow twitch. These are very important. Already we have discussed two type of fiber in body, and slow fiber and slow twitch fiber and fast twitch fiber, and these both of fiber play very vital role here if we are going for the endurance. So slow twitch fiber play very vital role. Slow twitch fiber जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके जो एंड्योरेंस है उसमें, बिकॉज with the help of slow twitch fiber, and these are fiber very best utilized for aerobic activities और endurance activities, यानी कांस्टेंट चलने वाली एक्टिविटीज, कैसे जो डांस है, जॉगिंग है, स्लो रनिंग और endurance activity, long distance type of activity. They provide small level of force for long period of time
to completing the activity, and there are better, suitable endurance activities. And this is a very important role to providing the energy, because slow twitch fiber give the best endurance to completing the task, सबसे जो बेस्ट है. एंड हाउ इट्स इंक्रीज, स्लो ट्विच फाइबर है या कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम बात करें इंड्योरेंस की, हाउ वी कैन इंक्रीज द इंड्योरेंस बाय परफॉर्मिंग रेगुलर एक्टिविटी फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, वी कैन इंक्रीज द endurance. This is very important. And now last topic of this topic, last point of this topic. See, now let's discuss about the flexibility. First of all, we will discuss what is the flexibility. After that, we will continue this topic. The range of movement possible at a joint or the flexibility depend upon only number of factors. So range of movement, that is the flexibility, and what type of factor determine the flexibility. Let's discuss the muscle strength. First point, the muscle strength, yani muscle should be have a minimum level of strength to make the movement possible, especially against gravity and external force. And in sprint events, the leg or knee cannot lift the required height or angle if the related muscles, abdominal muscles are weak. यहाँ एक चीज़ है कि मसल स्ट्रेंथ की बात करी गई है. और अगर हम बात करें स्प्रिंट इवेंट्स में, स्प्रिंट इवेंट में क्या होता है, जो आपके स्प्रिंट इवेंट है, सबसे पहले ये सोचने वाली चीज़ है, जो स्प्रिंट इवेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, 100, 200 और 400, इनको हम बोलते हैं स्प्रिंट इवेंट. ये सबसे फास्ट इवेंट होते हैं. अब स्प्रिंट इवेंट हैं तो सबसे बेसिक सी चीज़ यहाँ एक और चीज़ बोली गई कि इसमें आपके जो लेग होती हैं, जो नीज होते हैं, दे कैन नॉट लिफ्ट द रिक्वायर हाइट और एंगल इफ द रिलेटेड मसल्स वीक. अब किस मसल की बात आई है यहाँ पे, जब हम बहुत तेज भागते हैं हमें तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, एब्डोमिनल में होती है. एंड इफ एब्डोमिनल आर वीक, यानी एब्डोमिनल मसल्स आर वीक, देन कैन नॉट बी इंक्रीज द स्पीड एंड कैन नॉट बी कंप्लीट अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ दिस इवेंट. यानी जो इवेंट्स है इनका टाइम है उसके अकॉर्डिंग इवेंट कंप्लीट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ड्यू टू दी वीक मसल ऑफ एब्डोमिनल. तो यहाँ टांगे कम थकेंगी. सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मसल्स की ज़रूरत है. और जो हमारी सबसे पहली मसल है जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है, दैट इज़ दी एब्डोमिनल. यानी हमारा पेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, देन वी कैन प्रोड्यूस दी स्पीड. दिस इज द मेन थिंग. एंड वीक मसल कैन बिकम द लिमिटिंग फैक्टर्स अगेन फॉर अचीविंग द हायर रेंज ऑफ मूवमेंट. यहाँ में ज़रूरत है. अब हमारी सबसे मेन जो प्रॉब्लम आई है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वैन एवर परफॉर्मिंग दी शॉर्ट इवेंट, तो यानी सिटिंग स्टार्ट, वैन यू आर सिटिंग इन पोजिशन एंड देन यू विल बी रन, यानी आप बैठे हो, बैठ के उठोगे और भागोगे, तो यू हैव द रिक्वायर्ड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. उस टाइम हमें, जब हमें उठ के भागना है, तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत. और वो तब पॉसिबल है जब आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी यानी आपकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है, जो रेंज है, जो बॉडी की मूवमेंट है वो बहुत ही क्विक है. तो उस सिचुएशन में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस होगी, इंक्रीज होगी, देन यू विल बी परफॉर्म. नाउ नेक्स्ट, जॉइंट स्ट्रक्चर. जो जॉइंट का स्ट्रक्चर है, बनावट है, वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर बहुत तरह के हैं. सम ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर हैव ग्रेट रेंज ऑफ मूवमेंट या मोशन. अब मूवमेंट कैसी, अलग अलग रेंज है, उनकी अलग अलग मूवमेंट है. बट फॉर एग्जाम्पल लाइक द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दैट इज शोल्डर जॉइंट.
शोल्डर जॉइंट जो है उसकी रेंज, उसकी मूवमेंट जो है सबसे ज़्यादा ग्रेट है। वॉट एवर टाइप ऑफ मूवमेंट और विद द स्पीड वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ शोल्डर। रोटेशन जॉइंट है उसमें, हैंग, यू कैन हैंग योर सेल्फ, लटका सकते हो आप बॉडी कहीं एक बहुत बड़े टाइम तक, स्ट्रेच कर सकते हो, कुछ पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो। तो ये जो रेंज है, ये जो मूवमेंट है शोल्डर की, सबसे ग्रेटेस्ट जॉइंट है एंड इट्स कैन वेरी हेल्पफुल। और नेक्स्ट जो चीज़ आई किसके साथ, इफ़ वी वांट टू कंपेयर शोल्डर जॉइंट विद द नी जॉइंट, तो डेफिनेटली शोल्डर जॉइंट इज ग्रेटर देन नी जॉइंट। नी जो है हम वो कितने, दो ही एंगल में तो काम कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है, बैक, जब पीछे की तरफ नी को मोड़ोगे पूरा मुड़ जाएगा, लेकिन अगर फ्रंट एंगल की बात करें तो हम किक करते हैं देन इट विल बी स्ट्रेट। लेकिन यहाँ रोटेशन नहीं है नी के अंदर, लेकिन शोल्डर के अंदर रोटेशन भी है, स्ट्रेचबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रेंज ऑफ मूवमेंट भी है उसमें। तो दिस इज द ग्रेट जॉइंट। नाउ अनदर पॉइंट दैट इज द एज एंड जेंडर। Age and gender also play very vital role in the flexibility, and with the help of decreasing the age, flexibility automatically goes down. जितनी जितनी एज बढ़ती जाएगी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी कम होती चली जाती है, डिक्रीज हो जाएगी उस सिचुएशन में। ह्यूमन बॉडी इज वेरी एक्टिव टाइप ऑफ थिंग्स। कैसे, बहुत वैसी चीज़ों की ज़रूरत है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जितनी बॉडी एक्टिव होगी, परफॉर्म करती रहेगी कोई ना कोई टास्क, एक्टिविटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी इनहेंस, और विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग और एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, वी कैन इनहेंस इट। हम फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटियों के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के थ्रू। बट जेंडर ऑल्सो डिटरमिन फ्लेक्सिबिलिटी। जो जेंडर है हमारा, यानी जब हम यहाँ जेंडर की बात कर रहे हैं मेल और फीमेल में, तो ये भी डिटरमाइन करता है, बिकॉज फीमेल फ्लेक्सिबल कंपेयर टू मेल। जो मेल हैं उनके कंपेयर जो फीमेल होती है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके दो रीज़न हैं, बिकॉज वन इज द हाइट ऑफ फीमेल, जो फीमेल की हाइट होती है वो कम होती है, दैट्स वाई दे हैव ग्रेट रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू मैन। दूसरी, जो फीमेल की जो मसल्स हैं वो बहुत ब्रॉड नहीं है, मेल की जो मसल हैं वो बहुत ब्रॉड मसल होती हैं। जब स्ट्रेंथनर ब्रॉड मसल होंगी, यानी मसल मास ज़्यादा होगा, जहाँ मसल मास ज़्यादा होगा वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लेस होगी, और जहाँ लीन मसल मास होगा यानी कम मसल मास है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो दिस इज द मेन रीज़न द फ्लेक्सिबिलिटी इन वुमेन। अनदर पॉइंट, स्ट्रेचबिलिटी ऑफ मसल्स। मसल्स की स्ट्रेचबिलिटी, द स्ट्रेचबिलिटी ऑफ द मसल्स इज ऑल्सो ए ग्रेट फैक्टर इन लिमिटिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट, मेकिंग बॉडी मूवमेंट at a joint, the muscle must contract, जो contraction है muscles का, this is very important। और stretchability, उनका stretch यानी उनकी खींचने की क्षमता जो है, stretch करना muscle को, वो कितना है। if muscle are not regular stretch, यानी muscle को regular stretch ना किया जाए, exercise ना की जाए, workout नहीं किया जाएगा, then flexibility automatically goes डाउन और वीक। जो मसल्स हैं उनकी रेंज क्या होगी, वो रेंज डिक्रीज हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएंगी मसल्स। जो मसल्स की रेंज है दैट विल बी डिक्रीज एंड मसल बिकम शॉर्ट। मसल्स जो है सुकड़ जाएंगी उस सिचुएशन में, बिकॉज उनकी स्ट्रेचबिलिटी डिक्रीज हो गई, बिकॉज बाय नॉट परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज नहीं करी गई हैं, उनको स्ट्रेच नहीं किया गया है। दिस इज मेन थिंग। इट कैन बी सेड दैट stretchabilities of muscle can be determine the flexibility. Another point, that is internal environment. Internal environment also play very vital role to increasing the flexibility. Internal environment also, the athlete influence the flexibility. For example, 10 minutes in a warm bath increasing the body temperature, यानी अगर गर्म पानी में बाथ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, यानी बॉडी वार्म हो जाती है जल्दी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज,
यानी मसल बिकम एक्टिव, मसल जो है एक्टिव हो गई है, मसल स्टिफ नहीं है। विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर 10 मिनट स्ट्रेइंग आउटसाइड एंड 10 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस बाय बॉडी। अब बाहर चले जाते हो अगर, ये भी एक इशू है, तो उसमें क्या है, आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का रिड्यूस हो जाता है, और बॉडी टेम्परेचर और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों। तो इट्स डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, वॉट एवर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे बेसिक चीज़ है, अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, स्पीड की बात करें और इन्वायरमेंट की बात करें, तो जहाँ का वार्म इन्वायरमेंट होती है वहाँ स्ट्रेचबिलिटी ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और स्पीड भी ज़्यादा होती है उस सिचुएशन में। इट्स ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नाइजीरिया, वहाँ की स्पीड ज़्यादा है। और फ्लेक्सिबिलिटी इट्स डिपेंड ऑन दी समहाउ, इट्स डिपेंड ऑन दी इन्वायरमेंट, बट इट्स मैक्सिमम इट्स डिपेंड ऑन दी न्यूट्रिशन, डिपेंड ऑन दी प्रैक्टिस, मेन थिंग इज दैट, एंड इट्स डिपेंड ऑन दी ट्रेनिंग ऑल्सो। नाउ लास्ट पॉइंट, दिस इज दी प्रीवियस इंजरी, यानी पुरानी चोटें, पहले की चोटें। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंजरी, you know, tissues, cells, you know, become injured or ill sometime. Muscle can lead to be thickening. अब अगर चोट हो गई है कहीं सेल्स टिश्यूज में, कोई किसी भी तरीके की कोई पुरानी यानी प्रीवियस पहली कोई इंजरी होती है, उस सिचुएशन में तो मसल में थिकनेस आ जाती है, और समटाइम वी कैन नॉट प्रोड्यूस दी फोर्स ऑल्सो, फोर्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं मसल से, तो flexibility automatically goes down due to and less elasticity also increase in the muscles के अंदर जो elasticity है उसकी वो less हो जाती है। ये प्रॉब्लम एक कॉमन है। तो elasticity जो इलास्टिक है एक तरीके से देखा जाए, वो क्या है, रबड़ है जो, that is muscle just like a elastic, उसकी जितनी हम उसको वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, इट बिकम इंक्रीज, एंड इफ ड्यू टू सम इंजरी इट्स कैन नॉट यूज और वी कैन नॉट गिवन द टास्क टू द मसल, देन इट्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज, एंड दिस इज द मेन फैक्टर टू रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी, प्रीवियस इंजरी। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल 4 components. First we have discussed about the strength, another the speed, then endurance, and last that is the flexibility. So all factor, I think so you people can understand, the all factors play very vital role to understand to how to increase all these factors to improving with the help of training, by performing exercise, by performing the events, or particular specific role play by the fast and slow twitch fibers, that is the muscle composition. So this topic very important for board also. Thank you class. We will continue rest of topic.